Hello students, welcome to our free dental guide campaign. We are a medical dental academy providing you education and support for all the dental courses. If you are somewhere where you are finding difficulty in passing final year BDS, third year BDS or any dental subject, we are there to help you. In the previous lectures, we have discussed about leukoplakia. We will revise that first. After that, we will proceed. Okay. We have first discussed that what to write in leukoplakia. In leukoplakia, you have to first go with the definition. Okay. 1 minute. So in leukoplakia, we have first discussed about definition. Okay, it's a white patch which cannot be characterized as any other region of the oral cavity. Okay. Afterwards, we have seen that etiology, tobacco, alcohol, candidiasis, etc., and its mechanism. If you are planning to explain that it is irritating the mucosa and it will lead to keratinization, metaplasia, various changes. Okay. After that, you have to explain its clinical features. So whenever there is a patch in the oral mucosa, patient will have burning sensation, difficulty in chewing, his psychological status will be disturbed. So you can write these points. Normally in the initial stages that are asymptomatic. In the later stages only they will be symptomatic. Okay. Now histopathology, we have four changes. One is in the cellular layer, epithelium, cellular layer, epithelium thickness, then keratinization, increased keratinization and thickness of epithelium as well as dysplastic changes. Okay. So dysplastic changes, I already explained you what are the changes in the cells. Okay, increased nuclear pleomorphism, change in the size of cell, anisocytosis. We have discussed many topics yesterday. And treatment, removal of the etiology. You have to go with the antioxidants, multivitamin supplements, all these things you have to discuss in the leukoplakia. Okay. Now today's lecture is about lichen planus and other white lesions. We will start with this. Okay. White lesions in the oral cavity. Definition, yesterday we already discussed. It's common. White patches. Causes of white lesions. What are the causes? Okay. Due to increase in the thickness of one or more epithelial layers. So what you are seeing on the screen is the same thing you have to write in the histopathology of white lesions. Same thing. Cellular layers are disturbed or increased. Thickness of epithelium is increased. Keratinization is increased, either hypo or ortho. So that are the reason of white lesions. Now, what does this or what are the factors which cause all these reasons? So tobacco, alcohol, uh, bruxism, cheek biting, all are the factors responsible for these changes in cellular layers, epithelium, all these factors. Now classification. So what I mean is, before any question is asked in your exam, you will be asked classification. If you want, if you are going for an exam, you can see the question like this: classify white lesions of the oral cavity. Describe leukoplakia in detail. You have to write the classification first. Okay. In white lesions, we have two types: keratotic and non-keratotic. In keratotic, we have focal frictional keratosis, white sponge nevus, lichen planus, hairy leukoplakia, candidal leukoplakia, discoid lupus, erythematous.
in non-keratotic candidiasis, mucosal, etc. So basically in non-keratosis, we find that keratin property will not be affected. Okay, this is the only difference. Now we'll be discussing keratotic white lesions. So these questions may be sometimes asked for short term, rarely, but we'll just go through it rapidly. What is frictional keratosis? कोई भी चीज के ऊपर बार बार फ्रिक्शन आता है तो वो घिस जाता है, उसके ऊपर इरिटेशन आता है और वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है. So suppose a patient is having cheek biting history. Suppose a patient is having habit of eating coarse foods, rough food. In this case, there will be friction against oral mucosa. ठीक है, तो क्या होगा, जो म्यूकोजा होगा वो एक प्रोटेक्टिव एक्शन करेगा और म्यूकोजा वो थिक बना देगा. ठीक है, तो वो थिकनेस जो हो जाएगी वो बोलेंगे हम फोकल या फ्रिक्शनल केराटोसिस. थोड़ा वाइट जैसा लीजन हो जाएगा. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा वाइट जैसा हो गया है. टूथ अगर शार्प होंगे पेशेंट के नीचे वाले तो ये शार्प टूथ के कारण वाइट पैच हो गया है. क्लिनिकली एज, तो आपको मैंने कल बताया था एज के बारे में, तो आप कुछ भी डेकेड लिख सकते हो, फोर्थ टू फिफ्थ, फिफ्थ टू सिक्स. ओके, क्योंकि ये जो थर्ड से सिक्स डेकेड जो होता है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. ठीक है, इन केस ऑफ जेंडर वी हैव मेल इज ग्रेटर देन फीमेल. इन केस ऑफ साइट, तो आपको पता ही है पहले म्यूकोज आएगा. ठीक है, फिर चीक, पैलेट, फ्लोर ऑफ द माउथ. बाकी सब नहीं लिखते तो भी चलेगा, दो तीन लिख दो, लेकिन दो तीन तो आपको लिखना ही पड़ेगा. और शेप, तो क्या शेप होगा, उसका शेप इरेगुलर जैसा होता है लेकिन वाइट पैच जैसा हो जाएगा. इट हैव नो रेड मार्जिन. ठीक है, कोई स्पेसिफिक रेड मार्जिन नहीं है. रेड मार्जिन होगी तो हम अल्सर जैसा उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. पेनलेस होगा. ठीक है, अब हिस्टोपैथोलॉजी. हिस्टोपैथोलॉजी में आपको देखो बार बार यही चीज लिखनी पड़ेगी वाइट लीजन में, याद रखना. तो अगर लुकोप्लाकिया का जो हिस्टोलॉजी है वो आप इसमें लिख दो तो भी वो थोड़ा थोड़ा सेम ही होगा. तो पहला आया हाइपर केराटोसिस और हाइपर पैराकेराटोसिस. थिकनिंग ऑफ सेलुलर लेयर, ग्रेन्युलर. एकेंथोसिस है. ठीक है, एकेंथोसिस का मतलब इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ एपिथेलियम. ठीक है, और मैंने कल बताया था आपको ये कॉमन सेंटेंस आएगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन. तो ये जो आपकी स्क्रीन पर चार पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक केराटोसिस, ग्रेन्युलर सेल लेयर, एकेंथोसिस और क्रॉनिक सेल इन्फिल्ट्रेशन, वो चार वाइट लीजन में कॉमन रहेंगे. ठीक है, अब डायग्नोसिस. तो क्या डायग्नोसिस है, उसको आप प्रॉपरली हिस्ट्री लीजिए ताकि वो पता चले कि फ्रिक्शनल केराटोसिस है, लुकोप्लाकिया, लाइकेन प्लैनस नहीं है. ठीक है, ठीक से एग्जामिनेशन कीजिए. और अगर आपको ऐसा है कि बार बार ये हो रहा है दवाई देने से या ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसकी बायोप्सी करवाइए. ठीक है, बायोप्सी का मतलब ये है कि उसका एक पीस लेना है, लेबोरेटरी में भेजना है, वहाँ से वो बता देंगे कि ये डिस्प्लेजिया है कि नहीं. डिस्प्लेजिया अगर हो रहा है तो वो प्री मैलिग्नेंट है और कैंसर की ओर जा रहा है, और वो लीजन भी बता देंगे कि ये टाइप का लीजन है. ट्रीटमेंट, रिमूवल ऑफ द कॉज, और कभी कभार लीजन 2 या 3 वीक में चला जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट स्पॉन्ज निवस, दूसरा नाम है फेमिलियल है. ठीक है, और वाइट फोल्डेड जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस. इटियोलॉजी, हेरिडिटरी है, नाम से ही पता चल गया, फेमिलियल मतलब हेरिडिटरी है, कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है. साइट, तो अभी हमने आपको ऊपर साइट के बारे में थोड़ा समझा दिया. म्यूकोजा ही पहले आएगा शायद, बाकी सब बाद में आएगा. और ओक्लूजल लाइन के ऊपर जो म्यूकोजा है आजू बाजू वहाँ पे वो आएगा. फिर यहाँ पे टंग है, फ्लोर ऑफ द माउथ है. तो थोड़ा साइड में साइट में अगर आपको दिक्कत है तो थोड़ा याद रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या है, लॉजिक ही लगाना है. ठीक है, कि वो म्यूकोजा पर ही आएगा. अब शेप में, तो म्यूकोजा कैसा दिखेगा. ठीक है, तो वेलवेट टाइप दिखेगा. आप यहाँ देख लो कितना वो अच्छा थोड़ा दिख रहा है शेप में, क्लाउड जैसा. ठीक है, तो थिकन हो जाएगा, फोल्डेड हो जाएगा, कोरुगेटेड और स्पॉन्जी टेक्सचर हो जाएगा, और वाइट ओपेलेसेंट ह्यू. ठीक है, ओपेक जैसा नहीं होगा और ट्रांसल्यूसेंट जैसा नहीं होगा, मार्बल जैसा थोड़ा
ऑपेलेसेंट होगा, और कभी कभार वो बायलेटरल भी होगा और सिमेट्रिकल भी होगा, एक साइड में वो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। ये डायग्राम भी इसलिए दिया है आपको कि आपको याद करना है कि व्हाइट स्पॉन्ज निवस में क्या था। ठीक है, अब हिस्टोपैथोलॉजी वो हम डिस्कस नहीं करने वाले, वही हिस्टोलॉजी आएगी। हाइपरकेराटोसिस, एक्यांथोसिस, एपिथेलियल सेल्स चले जाएंगे, ये भी आप ऐड कर सकते हो। पिक्नोटिक न्यूक्लियाई होंगे वैक्यूलेटेड सेल में। अगर आप भूल जाते हो तो भी कोई बात नहीं, वो 4 पॉइंट जो हमने किए लुकोप्लाकिया की वही आप लिख दो। ठीक है, और आपको एग्जाम में अच्छा वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, जो देखो फिर से वो सेंटेंस आया, इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन, ये कॉमन रहेगा। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उसके जैसे कौन कौन से डिसऑर्डर है, तो हेरिडिटरी बेनाइन एपिथेलियल डिस्केराटोसिस, लाइकन प्लैनस, चीक बाइटिंग और लिकोएडिमा। ठीक है, ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, आप टॉपिकल टेट्रासाइक्लिन ड्रग दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें खाली 2 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन आप पॉइंट ये भी लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ इटियोलॉजी। आज मेरा वो राइटिंग पैड खराब हो चुका है, शायद नहीं चालू हो रहा है, इसलिए हैंडराइटिंग थोड़े खराब रहेंगे, माउस से लिखना होता है ना इसलिए। रिमूवल ऑफ इटियोलॉजी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, म्यूकोजा का जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, मल्टीविटामिन है, वो भी आप दे सकते हो। तो ट्रीटमेंट खाली 2 पॉइंट लिखो या 5 पॉइंट लिखो, तो 5 पॉइंट लिखना क्या गलत है। तो ये सब जो कॉमन ट्रीटमेंट आपको मैंने बताई वो आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन लाइकन प्लैनस। ठीक है, लाइकन प्लैनस, लुकोप्लेकिया, ओएसएमएफ, पेम्फिगस, ये 4 में से 1 या 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको ठीक तरह से याद करना है। लाइकन प्लैनस क्या है, तो वो वैसे तो दोनों डिसीज है, ओरोक्यूटेनियस, ओरल कैविटी का जो म्यूकोजा होगा उसमें भी होगा और स्किन पर भी होगा, तो उसको बोलते हैं म्यूकोक्यूटेनियस डिसीज। ठीक है, तो ओरल लाइकन प्लैनस के हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, क्यूटेनियस के बारे में भी थोड़ा आएगा, लेकिन ओरल लाइकन प्लैनस का ये डिस्कशन है। अब डेफिनेशन तो क्या है, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। ठीक है, लेकिन इन्फेक्शियस नहीं। अब इन्फ्लेमेटरी हुई तो उसका मतलब ये है हुआ कि कोई इन्फ्लेमेशन का कॉज होगा, वो हम देखेंगे क्या कॉज है और किस हिसाब से वो इम्यूनिटी में चेंज आता है ताकि वो म्यूकोजा बदल जाता है। ठीक है, अब आता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डर्मेटोलॉजिकल डिसीज। मैंने आपको बताया स्किन डिसीज का है, ऐसी स्किन डिसीज का है जो ओरल के लीजन्स भी प्रोड्यूस करती है, इसलिए हमने बोला कि वो म्यूकोक्यूटेनियस डिसऑर्डर है। ठीक है, अब उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो अक्रंस के हिसाब से है, म्यूकोजल डिसीज के साथ लेना देना भी है, पेनफुल का नेचर है, और कभी कभार वो मैलिग्नेंट में ट्रांसफॉर्म होता है, इसलिए हमको ये पढ़ना ज़रूरी है, उसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, स्किन के साथ म्यूकोजा में जो इन्वॉल्व होते हैं लीजन, वो थोड़े मैलिग्नेंट भी होते हैं, पेनफुल भी होते हैं, और कभी कभार म्यूकोजल डिसीज के जैसे दिखते हैं, इसलिए हमको ओरल लाइकन प्लैनस पढ़ना ज़रूरी है। अब इटियोलॉजी। ठीक है, तो अभी अभी तक जो आपने लेक्चर लिया हमारा, तो आपको इटियोलॉजी तो लिखना अभी आ ही गया होगा। पहले तो आप लिखो इडियोपैथिक, फिर आप लिखो कि ट्रोमेटिक है। अब ये इडियोपैथिक है ना, वो पहले लिखने से अच्छा है कि लास्ट में लिखो। ये पॉइंट हमने पहले समझाया आपको, लेकिन ये पॉइंट हमेशा लास्ट में लिखने का। पहले लिखने का एक स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, इन्फेक्शन है, माल न्यूट्रिशन, तो ये एक सेंटेंस में लिखना है, इससे अच्छा है कि सारे पॉइंट लिख दो। पहला स्ट्रेस, दूसरा ओवरवर्क, तीसरा ट्रॉमा, चौथा इन्फेक्शन, पांचवा माल न्यूट्रिशन, फिर साइकोसोमेटिक है, और ऑटो इम्यून डिसीज है। तो ये इटियोलॉजी आप देखोगे ना, तो मेनली ये अननोन है इटियोलॉजी, और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं, जैसे कि बॉडी में कोई सेल्स है ना, वो अपने आप ही ऐसा सोचेंगे कि कोई दूसरे सेल्स उसके विरोधी है, उसके एंटीजन है। ठीक है, तो उसके खिलाफ वो
इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना चालू कर देंगे और वो दोनों में रिएक्शन होगा। ऐसे ही ऑटो इम्यून डिसीज होता है। इम्यूनिटी क्या बोलते हैं, कोई रियल एंटीजन जो आता है बॉडी में, तब जाके बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। इसमें तो एंटीबॉडीज एंटीजन बाहर से आया ही नहीं, बॉडी का ही कोई टिश्यू को इसने एंटीजन समझ के एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना चालू हो गया, तो वो होता है ऑटो इम्यून डिसीज। So lichen planus is an autoimmune disease. Its etiology is unknown. Its etiology is idiopathic. And what are other factors of the etiology? बहुत सारी चीज लिख सकते हो, चिक बाइटिंग, टोबैको, अल्कोहल, ट्रॉमा, hypertrophic, malnutrition, systemic disease. All these factors you have to write in your exam if you are having lack of content and lack of this knowledge regarding exams. तो एपिथेलियल सेल्स जो होंगे ना, ओरल म्यूकोजा के एपिथेलियल सेल्स, वो प्राइमरली टारगेट होंगे। तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, ऐसे सोचते हैं कि ये एपिथेलियल सेल्स है ना हमारे, वो एंटीजन है, तो उसके खिलाफ वो एक्ट करना चालू करते हैं। तो वो हो क्या होगा एक्टिंग से, वो जब एक्टिंग करना चालू कर देंगे तब जाके ये हमको पता चलेगा कि ये एपिथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होगा, ये जब डिस्ट्रॉय करेंगे तब जाके हमको पता चलेगा कि एपिथेलियम में चेंज आ गया है। वैसे तो होना नहीं चेंज, लेकिन ये एपिथेलियल में चेंज आ गया है। क्यों? ऑटो इम्यूनिटी के कारण। अब मैकेनिज्म ऑफ बेसल सेल डैमेज, ठीक है, वो किसके रिलेशन में है, तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ऑटो इम्यून डिसीज है, इम्यूनिटी में थोड़ा दिक्कत है। अब कैसे कैसे इम्यूनिटी में दिक्कत है, सेल मीडिएटेड वाले रिस्पॉन्स में दिक्कत है, और लैंगरेंस सेल्स इन्वॉल्व होंगे, टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होंगे, और मैक्रोफेजेस होंगे। ठीक है, तो ये जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो खाली आपको ये समझाना है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, अब कैसे वो एक्ट करता है, तो पहले स्टिमुलस आया, कोई भी स्टिमुलस, या इम्यूनिटी के कारण, हेरिडिटी कारण, ट्रॉमा के कारण, तो उससे लैंगरेल सेल्स एक्टिव होंगे। मैक्रोफेजेस होंगे ना, वो इंटरल्यूकिन 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे और नीचे क्या करेंगे, टी लिम्फोसाइट्स को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट्स को बोलेंगे कि आप इंटरल्यूकिन 2 बनाइए। ठीक है, फिर से समझिए, जब ऑटो इम्यूनिटी चालू होती है तो कोई स्टिमुलस होता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस, इमोशनल फैक्टर, ट्रॉमा टू द म्यूकोजा, चीक बाइटिंग, tobacco, alcohol, etc. They will activate Langerhans cells. Okay, this is the first thing, Langerhans cells, how they are activated. And also they will activate macrophages. Okay, activate Langerhans cells and macrophages. Afterwards, they will release interleukin 1. Interleukin 1 will attract T lymphocytes and they will stimulate it टू प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन 2। ठीक है, तो इंटरल्यूकिन 2 अभी कुछ डैमेज करेगा। वो क्या करेगा, तो वो टी सेल का प्रोलिफरेशन करेगा और टी सेल को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ना, वो नॉर्मल इम्यूनिटी में होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ दिक्कत ही नहीं, फिर भी ये प्रोसेस हो रहा है, इसलिए हमको बोलना है कि ये ऑटो इम्यून है। ठीक है, अब एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, वो जो एपिथेलियल के बेसल सेल्स होते हैं नीचे वाले लेयर के, कोई एपिथेलियम होता है तो नीचे स्ट्रेटम बेसल होगा। ठीक है, वैसे 4 लेयर्स होंगे अलग अलग, तो नीचे वाला जो बेसल लेयर है उसमें ये सेल्स इंटरफियर करेंगे। ठीक है, अब गामा इंटरफेरॉन, ठीक है, वो क्या करेगा, वो केराटिनोसाइट्स को इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये एंटीजन जो है HLA-DR क्लास 2 हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी एंटीजन, नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, वो कुछ रिलीज होगा। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो होंगे ना,
वो HLA-DR को करना है। तो अभी एक बात समझिए, ये अगर आप नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं लिखना है एग्जाम में। खाली ऊपर लिखना है कि इम्यूनिटी में दिक्कत आई तो क्या होगा। तो ये सारे सेल्स एक्टिवेट हुए, लैंगर सेल्स और मैक्रोफेजेस। फिर इंटरल्यूकिन 2 आया, फिर टी लिम्फोसाइट्स को अट्रैक्ट किया, फिर इंटरल्यूकिन 2 बना, और इंटरल्यूकिन 2 ने बहुत सारे चेंजेस लाए म्यूकोजा में। क्या क्या? टी सेल प्रोलिफरेशन, टी सेल एक्टिवेशन। ठीक है, तो यही आपको लिखना है। अब आता है क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? तो पहले आएगा कि ये मिडिल एज में हो रहा है, बच्चों में होता ही नहीं है, दोनों में इक्वल है, मेल और फीमेल में। साइट, अब साइट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो म्यूकोजा पर ही होगा, लेकिन यहाँ पे स्किन की थोड़ी साइट बताइए। ठीक है, रिस्ट पर होगा, थाइस, ट्रंक्स, नेल्स, वल्वार म्यूकोजा। और ओरल में कहाँ पे होगा? तो जिंजीवा पर होगा, चिक्स, लिप्स, टंग और पैलेट। यहाँ पे आप म्यूकोजा भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये साइट हुई लाइकन प्लैनस की। अब ओरल लाइकन प्लैनस, नॉट क्यूटेनियस, स्किन वाला नहीं, ओरल लाइकन प्लैनस में क्या क्या आएगा? ठीक है, तो उसकी 5 टाइप की प्रॉपर्टी है, 5 टाइप के लाइकन प्लैनस है। हमने उसको कैसे याद रख दे? ठीक है, रेपाब यहाँ पे थोड़े अलग होंगे। ये रेटिकुलर आर, इरोजिव, ये प्लाक, एट्रोफिक और बुल्लस। ठीक है, अलग अलग बुक्स में ऐसे अलग अलग नाम दिए होंगे, लेकिन 5 टाइप्स है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है? रेटिकुलर दिया है, इरोजिव दिया है, तो प्लाक वाला जो है ना उसको ये लोगों ने हाइपरट्रॉफिक बता दिया है। हमने जो पढ़ा था ना 3rd ईयर में, वो प्लाक टाइप पढ़ा था, अभी ये हाइपरट्रॉफिक हो गया। ठीक है, तो आपको REHAB टाइप लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे इजी है क्योंकि ये 5 टाइप अभी आपको समझाना है। तो आप क्या कर सकते हो, हर एक पेज पर एक एक स्लाइड वो समझाना है। तो आपका टाइम वैसे भी 15-20 मिनट हो जाएगा, 7 मार्क के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, रेटिकुलर, हाइपरट्रॉफिक, एट्रोफिक, लाइकन प्लैनस और बुल्लस। अब पहले आता है रेटिकुलर लाइकन प्लैनस। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? रेटिकुलर लाइकन प्लैनस। तो आपको वैसे ही डिफ्रेंशिएट करना है साइट। ठीक है, तो आपको हमने समझाया, म्यूकोज आएगा, पैलेट, जिंजाइवा। फिर शेप, तो ये जो लाइंस है ना, वाइट रेडिएटिंग लाइंस, ऐसे लाइंस हो जाएगी। और जहाँ जंक्शन होगा, ये वाले जंक्शन, उसको बोलेंगे हम विकेम्स ट्राया। ठीक है, ये वाले लाइन को। ठीक है, ये जो जंक्शन है ना वहाँ पे वाइट डॉट ऐसे हो जाएंगे, उसको बोलेंगे विकेम्स ट्राया। ये वन लाइनर में आ सकता है आपको। ठीक है, और शेप, तो बोलना है कि अभी मैंने जो डायग्राम बताया कि वाइट लाइन से इंटरवेलवेटिंग, इंटरसेक्टिंग और पेप्यूल्स जैसा दिख रहा है, लाइन से वो लीनियर है, एनुलर और रेटिफॉर्म अरेंजमेंट। ठीक है, तो यही उसका टाइप आपको लिखना है। तो अगर आपको एग्जाम में अगर 5 मार्क के लिए पूछा जाए तो अभी आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको अपनी नोट्स में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखिए रेटिकुलर, यहाँ पे लिखिए इरोजिव, यहाँ प्लाक, यहाँ एट्रोफिक और बुल्लस। ठीक है, यहाँ पे एज, फिर साइड,
क्लिनिकल फीचर या अपीयरेंस। फिर ट्रीटमेंट भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो आपकी नोट्स में ऐसे लिखना है, और एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको ये से लिखोगे तो क्या होगा, टाइम और पेजेस कम होंगे। तो आपको क्या करना है, एक पेज पर एक उसको समझाना है। ठीक है, जैसे भी स्लाइड में दिख रहा है ना, ऐसे। ठीक है, तो रेटिकुलर का पूरा हुआ, अभी इरोजिव आया। ठीक है, मेरे कुछ फ्रेंड्स तो क्या करते थे, खाली नाम बदलते हैं, बाकी सब अंदर तो सेम टू सेम ही लिखते थे। ऐसे भी फ्रेंड्स पास हो जाते हैं थर्ड ईयर फाइनल ईयर में। ठीक है, अब इरोजिव की साइड क्या आती है, तो वो आती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ बक्कल म्यूकोजा। ठीक है, जो पीछे वाले दांत होंगे ना, वहाँ पे वो साइड पर होगा। ठीक है, अब कैसा वो शेप होगा, तो वो इरोजन जैसा है, तो वो उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा। वो क्या होगा, एट्रोफिक एरिया होगा, एरिथमेटस एरिया होगा, और सेंट्रल अल्सरेशन होगी। ठीक है, और जो पेरिफेरी होगी एट्रोफिक रीजियन की, वो उसके ऊपर वाइट रेडिएटिंग स्ट्राई होंगे। ठीक है, तो इतने आपको वर्ड्स अगर याद रहते हैं तो भी ठीक है, नहीं ठीक है तो भी आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो कि इरोसिव लाइकन प्लेनस में क्या है, इरोसिव एरिया ऑन बक्कल म्यूकोजा। फिर आप लिखोगे वाइट लाइंस दिखेगी। ठीक है, डिक्रीज्ड रेडनेस। ऐसे आप लिख सकते हो, जो भी मैंने बोला ना वैसे। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड रटने की जरूरत नहीं है। अब आता है एट्रोफिक लाइकन प्लेनस। उसमें साइट है अटैच्ड जिंजेवा, शेप है स्मूथ होगा, रेड होगा, एट्रोफिक जोन्स दिखेंगे, जैसे कि नाम ही एट्रोफिक है तो वो एट्रोफिक जोन दिखेंगे। और जहाँ पे मार्जिन है वहाँ पे वाइटिश केराटोटिक स्ट्राया है, और वो बाहर रेडिएट हो रहे हैं। ठीक है, और ब्लेंड हो जा रहे हैं। तो आप इसका क्या डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, अब लिखना है कि एट्रोफिक म्यूकोजा होगा, वाइट पैच ब्लेंडिंग इनटू म्यूकोजा। ठीक है, फिर रेडिएटिंग लाइंस। तो ये देखो, यहाँ पे जो इस साइड पर कुछ अलग लिखा है और इस साइड पर अलग लिखा है, तो मैं अगर एग्जाम में होता हूँ तो मैं ये वाला लिखता। ठीक है, इजी रख दो आपके लिए, थोड़ा याद रखिए, थोड़ा इजी जो रहे वो ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, भूल जाते हो तो भी ये ही लिखना है। अब आता है हाइपरट्रॉफिक या प्लाक टाइप लाइकन प्लैनस। ये थोड़ा लुकोप्लैकिया जैसा दिखेगा। ठीक है, वो कहाँ पे होगा, तो टंग के डोर्सम ऊपर और बक्कल म्यूकोजा पर। ठीक है, शेप कैसा होगा, तो आपको मैंने अभी बताया ना शेप कैसे लिखना है, ये देख लो आप कैसे लिखना है। तो आप लोग को लिखना है कि वाइट प्लाक होगा, नाम से ही पता चल गया, वाइट प्लाक ऑन टंग। ठीक है, फिर बॉर्डर थोड़ी डल होगी, फिर वो गला की वो स्प्रेड होता रहता है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में क्या क्या है थोड़ा याद रखिए, लाइकन प्लेनस में आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में क्या है, वो जो हमने पढ़ा था कल, हाइपर ऑर्थोकेराटोसिस और हाइपर केराटोसिस, एक्एंथोसिस, बेजल सेल डिजनरेशन। ठीक है, वैक्यूलाइजेशन ऑफ बेजल लेयर, बेजल लेयर अंदर खाली खाली लगेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा याद रख लो कि लाइकन प्लेनस होगा तो आपको बेजल सेल के ऊपर पीएचडी करना है। सब बता दो, बेजल सेल बीमार हुआ, कमजोर हुआ, खराब हुआ, लेफ्ट हुआ, राइट हुआ, बेजल सेल पर पूरे की पूरी हिस्ट्री चलेगी। रेटे प्रोसेस, कल हमने पढ़ा था, रेटे प्रोसेस निकल जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, हाइपरप्लास्टिक और सो टूथ। ठीक है, रेटे प्ले पेज पैक्स क्या होंगे, ऐसे हो जाएंगे, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये सो टूथ वाला अपीयरेंस हो जाएगा।
एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू भी के बीच टेयरिंग हो जाएगा, थोड़ा गैप जैसा हो जाएगा, और कुछ अलग प्रकार की बॉडीज आपको एपिथेलियम में दिखेगी, कनेक्टिव टिश्यू, साइवेट, हाइलाइन और साइटोइड बॉडीज, और कभी कभार डिस्क्रीट वो इयोसिनोफिलिक ओवैड बॉडीज भी देखने को मिलेगी। कहाँ पे? बेजल सेल लेयर पर। तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते थे एग्जाम में, अगर आपके पास टाइम नहीं और स्मार्ट वर्क करना है तो आपको क्या करना है, याद रखिए, आपको यहाँ पे लिख देना है कि हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। तो अगर आपका पास जो एग्जाम का पेज है वो ऐसा है, ठीक, तो क्या करो, आप पेज बिगाड़ो ऐसे ही, पहले यहाँ लिखो हिस्टोपैथोलॉजी, फिर यहाँ डायग्राम ड्रॉ करिए, मस्त वाला, बड़ा वाला कर दो तो भी चल जाएगा। अब सारे जो लेबलिंग है ना वो स्ट्रेट लाइन करके समझाइए क्या क्या हो रहा है। तो आप लिखो यहाँ पे कि सॉ टूथ वाला अपीयरेंस है रेटेपेक्स का, फिर यहाँ पे बेजल सेल रीजनरेशन है, यहाँ वैक्यूलाइजेशन ऑफ बेजल सेल है, ठीक है। तो ऐसे आपको अच्छी तरह से दिखे वो एक पेज में आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको जितना भी वो सर्कल बनाना है उसके लिए एक बैंगल हो या कोई राउंड मास्टर हो वो आप ले जा सकते हो, ठीक है। मैं तो पेन से ही ड्रॉ कर देता था, थोड़ी अच्छी फील आ गई थी, बहुत सारे हिस्टोपैथोलॉजी के डायग्राम ड्रॉ किया था तो वो सर्कल जैसा लग रहा था। अभी स्क्रीन पर भी मैंने हाथ से ही वो ड्रॉ किया है। तो ऐसे आपको अलग अलग पैटर्न में आपको आना चाहिए, लेकिन ये मैंने आपको बताया एग्जाम पेपर में एक पेज पर ही ऐसा बताओ, और अच्छी तरह से सारी हिस्टोपैथोलॉजी जो यहाँ पे लिख रही है आपको, जो ये स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, हाइपर ऑर्थोकेराटोसिस, वो सब लेबलिंग कर दो, कुछ राइट साइड कर दो, कुछ लेफ्ट साइड कर दो, ऐसे। तो आपको ज़्यादातर वो हिस्टोपैथोलॉजी पैराग्राफ में समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब लाइकन प्लैनस की जो हिस्टोपैथोलॉजी के डायग्राम है वो ऐसे है, ठीक है। ये देखिए रेटापेक्स है ना, वो थोड़े सॉ टूथ जैसे हो जाएंगे, ठीक है। फिर नीचे वाला बेजल सेल लेयर जो होगा उसमें प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। एट्रोफिक में ऐसे होता है। अब ये इतने सारे के सारे डायग्राम नहीं ड्रॉ करने हैं, एक ही आप ड्रॉ कर दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो क्या है उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस? तो कैंडिडियासिस है, क्योंकि वो वाइट पैच होगा तो कैंडिडियासिस भी होगा, ल्यूकोप्लेकिया भी होगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी होगा, ड्रग इरप्शन होगा, डिस्कोइड लपस एरिथमेटस भी आएगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। अब ये वन लाइनर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीन स्पान सिंड्रोम, ठीक है। तीन चीज मिलकर आती है, लाइकन प्लैनस, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, LHD, ठीक है, ग्रीन स्पान सिंड्रोम। अब ट्रीटमेंट क्या आएगी? तो उसकी ट्रीटमेंट ये है कि आपको कोई ट्रीटमेंट, पहले तो ऑटो इम्यून है, ठीक है, तो उसकी तो कोई ट्रीटमेंट आती नहीं है, लेकिन ऑटो इम्यून बनता है किस कारण से उसको आपको निकालना है। तो पहले तो आपको क्या लिखना है, रिमूवल ऑफ ईटियोलॉजी, ठीक है। फिर उसकी कोई स्पेसिफिक सिस्टमिक या लोकल थेरेपी है नहीं, रिमूवल ऑफ ईटियोलॉजी कर दिया, फिर आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है, टॉपिकल भी दे सकते हो, इंट्रालेजनल भी दे सकते हो, सिस्टमिक भी दे सकते हो, एंटी फंगल भी थेरेपी भी दे सकते हो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, लाइकन प्लैनस होता है ना, वो फंगल डिसऑर्डर के साथ जुड़ा हुआ होता है। फंगल डिसऑर्डर कौन सा है? कैंडिडियासिस। तो आप अगर एंटी फंगल दोगे तो भी कैंडिडियासिस अगर सॉल्व हो जाता है तो भी लाइकन प्लैनस थोड़ा हील हो जाएगा। और ये रेटिनॉइड्स है, विटामिन ए वाले, जो ताकि आपको म्यूकोजा को स्ट्रेंथ अच्छी मिले, म्यूकोजा इम्यून प्रॉपरली हो जाए, ठीक है। तो ये उसका ट्रीटमेंट है। तो लाइकन प्लैनस में आपको कोई डाउट हो तो हमको बताइए, यहाँ पे वो लाइकन प्लैनस पूरा होता है। अब प्रोग्नोसिस क्या आएगा? तो इट्स ए बेनाइन लीजन। बेनाइन का मतलब क्या होता है कि एक जो लीजन होता है कैंसर वाला, वो एक ट्यूमर जैसा होता है, वो वहाँ ही वहाँ रहता है, उसके साइज में ज़्यादातर बढ़ोतरी नहीं होती,
और वो मेटास्टेसिस नहीं होता है और वो स्प्रेड नहीं होता है। मैलिग्नेंट होता है, उसका रैपिड एक्सपांशन होता है, वो दूसरे टिश्यूज को भी खा जाता है, इन्वेड कर देता है, और वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, एक लिम्फ नोड से दूसरे लिम्फ नोड भी वो अपने सेल्स फैलाता है। वो जो फैलाता है सेल्स, वो प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, और वो मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं उसको। तो बेनाइन लीजन एक ऐसा है कि जो थोड़ा क्लिनिकली सिम्टम्स थोड़ा ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो लाइकन प्लैनस इज एन बेनाइन डिसऑर्डर, बट ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन उनको कोई गिनते नहीं है। ठीक है, और जो कैंसर में कन्वर्ट होते हैं लाइकन प्लैनस, वो ज़्यादातर इरोजिव और एट्रोफिक टाइप के होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आया हैरी लुकोप्लाकिया। ठीक है, वो लुकोप्लाकिया का भाई है, लेकिन यहाँ पे हैरी लुकोप्लाकिया। तो हैरी लुकोप्लाकिया आता है ना, तो उसका नाम एच से चालू होता है, एच। तो आपको ये याद रखना है कि ये HIV के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, HIV में क्या होता है, हैरी लुकोप्लाकिया आता है, बर्किट्स लिम्फोमा आता है, नेसोफेरिंजियल, ऐसे सब रिलेशन में होता है। ठीक है, और कभी कभार ये लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये एप्स्टन बार वायरस से होता है। ठीक है, तो hairy leukoplakia is associated with HIV. In HIV patients, we find hairy leukoplakia as a one of the feature. अब उसकी डेफिनेशन, वो अनयूजुअल वाइट लीजन है, हेयरी अपीयरेंस है। ठीक है, ऊपर के पेपिला होंगे ना टंग के ऊपर, वो थोड़े हेयर टाइप हो जाएंगे टंग के ऊपर, तो आपको लगेगा कि हेयरी अपीयरेंस है। ठीक है, कहाँ पे, तो लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग के ऊपर। ठीक है, लेटरल बॉर्डर टंग के ऊपर आपको अगर सफेद सफेद बाल जैसे दिख स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, तो वो एक हेरी लुकोप्लाकिया का एक सिम्टम है। तो अगर हेरी हेरी लुकोप्लाकिया के बारे में आपको पूछा जाए तो H फॉर HIV और एप्स्टन बार वायरस, दो चीज तो आपको आनी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि टंग पर होता है वो। ठीक है, अब इटियोलॉजी, इटियोलॉजी क्या है, तो पहले गे होते थे, होमोसेक्सुअल्स में होता है, फिर एप्स्टन बायर वायरस के कारण होता है, और एड्स के पेशेंट पे वो होता है। ठीक है, अब क्लिनिकली वो कैसा दिखता है, तो टंग के लेटरल सरफेस ऊपर वो दिखेगा। ठीक है, डॉर्सम ऑफ टंग, फ्लोर ऑफ द माउथ पर साइट। और शेप, तो शेप को मैंने आपको लिखना समझा दिया, वाइट हेरी लाइक स्ट्रक्चर्स, वाइट हेरी लाइक फोल्डर्स ऑन दिस टंग, ऐसे आप लिख सकते हो। कोरुगेटेड होगा और पेपिलरी, पेपिलरी का मतलब ऐसे ऐसे एलिवेटेड होंगे। ठीक है, तो पेपिलरी टाइप होगा, उसके कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। ठीक है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं होंगे जब तक कोई कैंडिडा वाला इन्फेक्शन होता है ना, फंगस वाला, वो उसके साथ में एसोसिएट होता है, तब तक वो कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। अब हिस्टोपैथोलॉजी, तो अब ये करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे घुमा फिरा के वही आएगा, हाइपर केराटोसिस, हाइपरप्लेजिया, केराटोटिक सरफेसेस। यहाँ पे स्पाइनस लेयर में इन्वॉल्वमेंट है, ये थोड़ी चीज याद रखनी है आपको। यहाँ पे स्पाइनस लेयर में इन्वॉल्व है, और लाइकन प्लैनस में बेजल सेल इन्वॉल्व था। न्यूक्लियर क्रोमेटिन चेंज हो जाएगा, वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्प्लेजिया हो जाएगा इसलिए। फिर जब वो डिसऑर्डर होगा हेरी लुकोप्लाकिया, तो कैंडिडा एल्बिगन्स वाले भी स्ट्रक्चर्स वहाँ पे होंगे, तो कैंडिडा एल्बिगन्स हाइफे, वहाँ पे उसको रहने के लिए जगह मिल जाएगी। और खास देखिए यहाँ पे लिखा है कि नो इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन, हमने बोला कि सब में लिखना है, लेकिन हेरी लुकोप्लाकिया में आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अब आता है डायग्नोसिस, तो मैं एक बार फिर भूल गया, हिस्टोपैथोलॉजी में आपको डायग्राम ही ड्रॉ करना है ऑलवेज, भले आप दिया है नहीं दे दिया है, ये सारी चीजें है ना, वो डायग्राम ड्रॉ करके ही एक पेज में, बड़ी वाली पेज में ड्रॉ करके समझा देना है, राइट और लेफ्ट साइड में। ठीक है, डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में सब जगह ये कॉमन ही आएगा, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन करना है,
ठीक है, आपको खाली नाम ही याद रखना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना है और सदर्न ब्लॉट से करना है। ये प्रोसीजर तो मुझे भी नहीं पता क्या करना होता है, लेकिन खाली आपको नाम याद रखना है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो क्या आया, तो इडियोपैथिक ल्यूकोप्लेकिया। देखो सब जो ऊपर हमने पढ़ा था ना वो सारे के सारे अब रिपीट होंगे। ठीक है, फ्रिक्शनल केराटोसिस। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी थोड़ा रटने वाली चीज़ नहीं है, आप आराम से उसमें थोड़ा अपना ध्यान लगाकर लिख सकते हो। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं कि आपने एक कम लिख दिया तो आपको कम मार्क मिलेंगे, लेकिन आपने मतलब लिखा ही नहीं तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस अभी रटना नहीं है। लुकोप्लाक क्या है, तो लाइकन प्लानस आएगा ही आएगा, कैंडिडियासिस आएगा ही आएगा, ऐसे आपको याद रखना है। ट्रीटमेंट, तो रिमूवल ऑफ इटियोलॉजी। ठीक है, फिर ए साइक्लोविर क्योंकि ये एचआईवी के साथ जुड़ा हुआ है। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, तो ये भी कॉमन आएगा, हम जो देते हैं ना केनाकोट ऑइंटमेंट, ठीक है, उसमें क्या आता है, ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइड आता है। वो एक जहाँ आपको लगे कि वो कैंसर टाइप का लीजन है, नॉन हीलिंग अल्सर है, तो आप ये स्टीरॉइड्स दे सकते हो टॉपिकल। ठीक है, अब नॉन केराटोटिक वाइट लीजन्स, तो ये है कैंडिडियासिस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने पहले आपको ये बताया कि लुकोप्लेकिया, लाइकन प्लानस, ओएसएम पेम्पिकस में से एक आएगा। अभी कैंडिडियासिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, उसमें से दो में से कोई एक क्वेश्चन आने वाला है। तो कैंडिडियासिस क्या है, ठीक है, तो वो एक फंगल डिसऑर्डर है। ठीक है, वो तो आप याद रखिए फंगल डिसऑर्डर है। फंगल डिसऑर्डर कहाँ कहाँ पे होता है, तो एक बात समझिए कि अगर पेशेंट अपना मुंह साफ नहीं रखता है या उसको खराब आदत है, वो ठीक से कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, या फिर पेशेंट मेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड है, या उसके पेरेंट्स मेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको सिखाया नहीं, या कोई एरिया में ऐसे रह रहा है कि उसको पता ही नहीं कि दांत को भी साफ करना होता है, तो ऑल दिस आर द रीजंस। ओके, तो कैंडिडियासिस क्या है, तो वो म्यूकोजल और क्यूटेनियस कंडीशन का एक लीजन है। ठीक है, और कैंडिडा जीनस ऑफ फंगई, फंगस होता है उसका, कैंडिडा जो होता है ना जीनस, उसके ऑर्गेनिजम्स दे प्ले रोल इन इटियोलॉजी ऑफ कैंडिडियासिस। इटियोलॉजी, तो देखिए कैंडिडा एल्बिकन्स इज द मेन ऑर्गेनिज्म, बट हमको क्यों नहीं होता है, किसी और में क्यों होता है, तो वो जो फैक्टर्स होते हैं किसी और में होता है उसको बोलते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। जिसमें होता है ना वो पेशेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स है कि वो कैंडिडा को प्रमोट कर रहे हैं, उसको अटकाने के बजाय प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या क्या है, तो अगर पेशेंट कोई लंबी ट्रीटमेंट पर है टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो उसकी इम्यूनिटी थोड़ी कंप्रोमाइज हो जाएगी। पेशेंट को खाने में दिक्कत है, माल न्यूट्रिशन में दिक्कत है, ठीक से उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है, ओरल हाइजीन पुअर है, जेरोस्टोमिया है, सिस्टमिक एंटीबायोटिक थेरेपी है, कैंसर कीमोथेरेपी है, एड्स। तो ये सब का इन शॉर्ट क्या हुआ कि पेशेंट की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है, तो ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स अभी बार बार आएंगे आगे, आप जाके पेरियो में फाइनल ईयर में एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस क्वेश्चन करोगे तो उसमें भी यही फैक्टर्स है। ठीक है, वो हर किसी में होता नहीं है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो खुद से अपने आप को इम्यूनिटी ठीक नहीं है, उस पेशेंट में कैंडिडा ग्रो करेंगे, वहाँ पे वो कॉलोनाइजेशन कर देंगे और वो अपने फीचर्स एक्ट या एग्जिबिट करेंगे। अब क्लासिफिकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन अगर आप कर दो तो आपका आधा टाइम तो हो जाएगा फुल मार्क्स लिखने में, एमसीक्यू भी आते हैं इसमें से। अब एक्यूट कैंडिडियासिस, ठीक है, तो वो क्या है, तो एक्यूट सूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस उसको बोलते हैं थ्रश, और एक्यूट एट्रोफी उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक सोर माउथ। ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स लेते हो तो आपका मुंह थोड़ा सोर हो जाता है, वो बोलते हैं एक्यूट एट्रोफिक कैंडिडियासिस। अब आता है क्रॉनिक कैंडिडियासिस। ठीक है, उसमें क्या है, तो डेंचर के हिसाब से होता है,
या पेशेंट का जो लिप होता है कॉर्नर ऑफ द माउथ, उसमें आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। फिर हाइपरट्रॉफिक, वो क्या है? तो कैंडिडियल ल्यूकोप्लाकिया, जो ल्यूकोप्लाकिया कैंडिडियासिस के साथ एसोसिएटेड है वो मीडियन रोम्बोइड ग्लोसाइटिस और क्रॉनिक मल्टीफोकल कैंडिडियासिस। तो ये क्लासिफिकेशन थोड़ा आपको ठीक से याद करना पड़ेगा। तीसरा आता है म्यूकोक्यूटेनियस, उसमें आता है लोकलाइज्ड, फैमिलियल और सिंड्रोम एसोसिएटेड। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपके एग्जाम में खाली यही क्वेश्चन आएगा 5 या 7 मार्क्स में, खाली थ्रश लिखा होगा। तो थ्रश क्या है? तो वो एक्यूट स्यूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस है। ठीक है, एक्यूट टाइप का है और स्यूडोमेम्ब्रेनस है। तो नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि स्यूडोमेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन जहाँ पे वो अफेक्ट होता है टंग के ऊपर, म्यूकोजा ऊपर, वहाँ पे एक मेम्ब्रेन बन जाएगी। ठीक है, और वो स्यूडो होगी या वाइट पैच या प्लाक हो जाएगा। लेकिन लुकोप्लाक क्या एक ऐसा है कि वाइट प्लैक या पैच निकलता नहीं है स्क्रैपिंग से। यहाँ पे अगर आप स्क्रैप कर दोगे ना, तो ये वाइट वाला पैच होगा, ये सब निकल जाएगा और नीचे थोड़ा रेडिश एरिया आ जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन, गलत वाली मेम्ब्रेन। वैसे मेम्ब्रेन निकलनी नहीं चाहिए, लेकिन ये स्यूडो मेम्ब्रेन है ना, इसलिए वो निकल जाएगी। और ये स्यूडो मेम्ब्रेन निकलेगी तभी हमको डायग्नोसिस पक्का होगा, ये तो कैंडिडियस टाइप का ही लीजन है। अगर निकलता नहीं तो वो लुकोप्लाक के टाइप का होगा। तो ऐसे हम कोरिलेट और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, ठीक है, आपने अगर वो स्यूडो मेम्ब्रेन को निकाल कर चेक करते हो लेबोरेटरी में तो क्या क्या आएगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा ये कैसे करना है, ये समझाया है। 20% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, टुकड़ा निकाल कर स्मीयर बनाना है, उसको मैसरेट करना है 20% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, फिर आपको वो चेक करना है। अगर ये आपको नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये खाली एमसीक्यू के लिए काम की चीज़ है। नीट एमडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, डेंटल जीपीएससी की, तब जाके ये क्वेश्चन आता है कि कैंडिडेल आईफा को स्टेन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। तो 20% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है, तो आपको तो पता ही है हिस्टोपैथोलॉजी में क्या लिखना है। हाइपर पैराकेराटोसिस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन, ये वाले इन्फिल्ट्रेट हो जाएंगे और कैंडिडल हाइफे हो जाएंगे पैराकेराटिन लेयर में। कैंडिडा के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, वो पैराकेराटिन लेयर में चिप जाएंगे ठीक से। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो क्या आएगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस? तो आपको ये लगेगा कि ये वो ल्यूकोप्लाकिया भी है, ठीक है, वाइट केराटोटिक लीजन भी है, सिफिलिस का पैच है, ट्रॉमेटिक अल्सरेशन भी है, और कोई केमिकल बर्न्स के कारण भी वो स्लो हो गया है, स्यूडो मेम्ब्रेन हो गई है। ये उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट, ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या आएगी? ये फंगल का डिसऑर्डर है, तो आपको एंटीफंगल्स देने हैं। तो निस्टेटिन आता है, क्लोट्राइमेजोल, ठीक है। ये अगर ये कॉमनली हम यूज करते हैं, अभी कैंडिड माउथ पेंट आता है, 1% क्लोट्राइमेजोल आता है। हम ज़्यादातर क्लिनिक में ये प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, तो आपको एंटी फंगल्स देने हैं, तो वो तो एंटी फंगल्स दोगे, बाकी भी आपको देना है ना, तो आप टॉपिकल स्टीरॉइड्स भी दे सकते हो। फिर क्या क्या करना है? तो जितने भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स थे उसको आपको ठीक से सॉल्व करना है। तो आपको बोलना है कि इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, जो भी फैक्टर्स है उसको वो ठीक से करेंगे। पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपना ओरल हाइजीन केयर मेंटेन करिए, काउंसलिंग करेंगे ओरल हाइजीन मेंटेनेंस करने के लिए। तो ये ट्रीटमेंट आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है गाइस। हमने आपको जो भी अभी तक पढ़ाया वो आपको इजी में समझ में आया होगा। ठीक है, हम आपको ये बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना अभी, आपको अभी हमारे सारे वीडियोस देखना है, और वीडियोस जाके देख कर आपको नोट्स बनानी है। पहले वीडियोस देखिए, फिर उसकी नोट्स बनाइए। ठीक है, और फिर देखिए कि वो आपके टाइम लिमिट में पूरा होता है या नहीं। ठीक है,
पहले वीडियोस देखिए हमारे, फिर नोट्स बनाइए आपकी, और देखिए कि कंटेंट इज मोर और लेस। ठीक है, कंटेंट चेक। और मोर और लेस कैसे पता चलेगा? टाइम के हिसाब से। आपको मैक्सिमम 25 मिनट्स के अंदर कोई भी फुल क्वेश्चन लिख देना है। ठीक है, तो वो आपको करना है। अभी आपको अगर कोई डाउट हो, लिखने में दिक्कत है नोट्स में, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमारी वेबसाइट की जो लिंक है वो यहाँ पे दी गई है, www.medicaldentalacademy.com। हमने सारी टेस्ट सीरीज रख दी है जो आपको डेंटल जीपीएससी में काम आएगी। ठीक है, नीट एमडीएस में काम आएगी, सब जगह पर काम आएगी, ऐसी हमने टेस्ट सीरीज रख दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है अभी। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको दिक्कत हो रही है, क्या करें क्या नहीं, तो आप हमारे वीडियोस में जाकर जो भी हमारी एग्ज़ाम्स है वो आप सारी एग्ज़ाम्स दे सकते हो। और सारे कोई भी कोर्स हो डेंटल का, डेंटल जीपीएससी, आरपीएससी, एचपीपीएससी, हिमाचल प्रदेश की जो भी एग्ज़ाम आई है वो, फिर आईएनआई सीईटी, फिर एम्स की जो एग्ज़ाम आती है, इंटरव्यू आता है कोई सीनियर रेसिडेंट का, जूनियर रेसिडेंट का। ठीक है, फिर पीजीआई की जो एग्ज़ाम है, फिर कोई भी प्राइवेट डेंटल इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू है, उसमें आप अगर तैयारी करना है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। So guys, please like and subscribe our channel if you like our content. We have all the um, playlist in our YouTube channel at the rate Medical Dental Academy. If you have not pressed the bell icon, please press the bell icon and you'll be given notifications for the upcoming videos. So have a nice time. Bye bye.